students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is classification of computers. In this chapter, we will learn computer simplified, types of computer, supercomputer, mainframe computer, mini computer, microcomputer. A computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve and process data. You can use a computer to type documents, send email and browse the web. You can also use it to handle spreadsheets, accounting, database management, presentations, games and more. तो कंप्यूटर आपका वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो आपके डेटा इनपुट लेता है, मैनिपुलेट करता है आपके डेटा को और आपको उसी के
देन कम्स योर वेदर फोरकास्टिंग, जितने भी आपका मौसम विभाग होता है, कहाँ पर हरिकेन आ गया है, कितना ज़्यादा आ गया है, कहाँ तक आ सकता है, आपकी जो स्टॉर्म्स होते हैं, विंड्स होती हैं, कितनी स्पीड की हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें तबाह कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सुपर कंप्यूटर्स में देखी जाती हैं। इसके अलावा जो आपकी न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करी जाती है वो भी आपके सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू करी जाती है। Popular supercomputers: IBM's Sequoia in United States, Fujitsu's K Computer in Japan, IBM's Mira in United States, IBM's Super MUC in Germany, NUDT Tiana 1A in China। तो ये आपके 5 अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग कंट्रीज के कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं जो यूज करे जाते हैं। Second, mainframe computer. Although mainframes are not as powerful as supercomputers, but certainly they are quite expensive nonetheless, and many large firms and government organizations uses mainframes to run their business operations. The mainframe computers can be accommodated in large air-conditioned rooms because of its size. Supercomputers are the fastest computers with large data storage capacity. Mainframes can also process and store large amount of data. Banks, educational institutions, and insurance companies use mainframe computers to store data about their customers, students, and insurance policy होल्डर्स। तो आपके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये भी बहुत बड़े होते हैं, इनको भी बड़े बड़े रूप से रखना पड़ता है, ये भी एक्सपेंसिव होते हैं। ये यूजुअली आपके वहाँ पर देखे जाते हैं जैसे आपके न्यूज़ चैनल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो यहाँ पर इनको बड़े बड़े एयर कंडीशन रूम्स में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, साइज में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और ये जो होते हैं इनकी भी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। Popular mainframe computers: Fujitsu's ICL VME, Hitachi's Z800। तो ये दो आपके कंप्यूटर्स हैं जो कि आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में आते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। Third, mini computer. Mini computers are used by small businesses and firms. Mini computers are also called as mid-range computers. These are small machines and can be accommodated on a disk with not as processing and data storage capabilities as supercomputers and mainframes. These computers are not designed for a single user. Individual departments of a large company or organizations use mini computers for specific purposes. For example, a production department can use mini computers for monitoring certain production processes. Popular mini computer: K202, Texas Instruments TI-990, SDS-92, IBM mid-range computers. Mini computer emerged in the 1960s. These machines were smaller and much cheaper as compared to their predecessors. They became possible with the use of transistors and core memory technologies. फिर आपके आते हैं मिनी कंप्यूटर्स जिनको मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहाँ पर ही यूज़ करे जाते हैं, सिंगल यूज़र के लिए नहीं होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहाँ पर ये मिनी कंप्यूटर्स यूज़ करे जाते हैं। एंड एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स एंड द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है। सम पॉपुलर मिनी कंप्यूटर्स आर K202, Texas Instruments TI-990, SDS-92, IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स। और ये जो है 1960s में आपके सबसे ज़्यादा इमर्ज हुए थे, and these mini computers became possible because of the use of transistors and core memory technologies. Number 4, microcomputers. Personal computers. Microcomputers are the most common kind of computers in use. The term microcomputer was introduced with the advent of systems based on single chip microprocessors. The best known early system was the Altair 8800, introduced in 1975. The term microcomputer has practically become an anachronism. These computers include desktop computers, a case and a display put under and on a desk. In-car computers built into a car for entertainment, navigation, etc. Game consoles, fixed computers specialized for entertainment purposes, video games. तो आपके उसके बाद आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स भी इन्हें कहा जाता है, और ये आपके यूजुअली जो यूज़ में करे जाते हैं आपके पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। ये आपकी अलग अलग टाइप की यूनिट होती हैं, इसमें आपके डेस्कटॉप भी आते हैं,
इंट्रोड्यूस्ड इन 1975। और माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाले आपके कंप्यूटर्स होते हैं, हाउस होल्ड में भी देखे जाते हैं, स्कूल्स में भी देखे जाते हैं। जैसे कि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, जिसमें आपका एक केस होता है, डिस्प्ले होता है जो आपके डेस्क के ऊपर भी होता है और कुछ आपके डेस्क के नीचे रखा जाता है। देन कम्स योर कार कंप्यूटर, जिसे कारप्यूटर भी कहा जाता है, जिसमें आपकी स्क्रीन होती है कार के अंदर ही, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, कोई वीडियो चलाने के लिए या फिर नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करी जाती है। देन कम्स योर गेम कंसोल्स। आपके जो गेम कंसोल्स होते हैं वो कंप्यूटर जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए। तो ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। Smaller microcomputers are also called mobile devices. Laptops and notebook computers are portable and all in one case. Tablet computers like laptops but with a touch screen entirely replace the physical keyboard. Smartphones, smartbooks, PDAs and palm top computers are small handheld computers with limited hardware. Programmable calculator like small handhelds but specialized on mathematical work. Handheld game consoles the same as game consoles but small and portable. कुछ आपके छोटे छोटे से माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको मोबाइल डिवाइसेस भी कहा जाता है, जैसे आपके लैपटॉप्स हो गए, नोटबुक्स हो गई आपकी कंप्यूटर की जो पोर्टेबल होती हैं, ऑल इन वन केस होता है, एक ही केस में आपकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं और कुछ अलग सेपरेट डिवाइसेस नहीं होती है। देन कम्स योर टैबलेट कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप्स बट विद अ टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन की मदद से जो फिजिकल कीबोर्ड का फीचर है वो पूरा ही रिप्लेस हो जाता है। देन कम्स योर स्मार्टफोन्स, स्मार्ट बुक्स। ये जो होती हैं आपकी स्पेसिफाइड होती हैं, छोटी होती हैं, कुछ आपकी बड़ी होती है लेकिन पोर्टेबल होती हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से इसको लेकर जा सकते हैं। देन कम्स योर प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर हैंडहेल्ड डिवाइसेस, जिसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी टाइप की चीज़ को, आपके मैथमेटिकल वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। फिर आपके हैंड हेल्ड गेम कंसोल्स आते हैं, जैसे आपकी जॉयस्टिक होती है, आपको एक ही आपके उसकी मूवमेंट से, आपके हाथ में वो होगा, उसकी मूवमेंट से आपके कंप्यूटर पे गेम्स आप खेल सकते हैं। तो ये सारी आपके माइक्रो कंप्यूटर की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। To revise, the term microcomputer was introduced with the advent of systems based on single-chip microprocessors. Mini computers are used by small businesses and firms. Mini computers are also called as mid-range computers. The mainframe computers can be accommodated in large air-conditioned rooms because of its size. Supercomputers are used for research and exploration purposes. तो माइक्रो कंप्यूटर जो है वो आपके सिस्टम बेस्ड जो आपका सिंगल चिप प्रोसेसर पे था उसकी मदद से आपका ये वर्ड इमर्ज हुआ है। आपके 4 टाइप के कंप्यूटर्स के बारे में हमने पढ़ा। आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जो आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेस रिसर्च, मिसाइल टेस्टिंग ऐसी जगहों पे यूज़ करे जाते हैं। देन आपके मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं जो छोटे मोटे बिजनेसेस और यहाँ तक कि आपके घरों पे भी यूज़ करे जाते हैं। आपके स्मॉल टाइप के माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जैसे कि आपके लैपटॉप्स हो गया, टच स्क्रीन लैपटॉप हो गया, टच स्क्रीन नोट पैड हो गया। तो ये सारे आपके स्मॉल माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी है।